is Shweta and I'm your class in charge. I was on a maternity leave, so I returned back. Fine. So in case if you guys have any query, you are welcome. Okay. तो department में ही होती हूँ any time. Whatever you want to ask, you can come to me. पैरासाइटो लैब में होती हूँ मैं, ठीक है. So guys, Dr. Vinita have taught up till the treatment part, so I'm continuing after that. So what is the treatment of the viral diseases? Treatment. So antiviral drugs, basically the viral, you guys know what are the viruses. So the viral drugs depend upon which infection you guys have. For example, if the herpes infection is there, then the treatment part belongs to only herpes anti-herpes drugs. Whereas in case of influenza, you are going to take only anti-influenza viruses. For example, for HIV, we are going to take ART. You guys have, I think you guys have heard about antiretroviral therapy. Fine. So anti-herpes drugs include acyclovir, valcyclovir, pancyclovir, all the we can say VIR जिनके पीछे लगता है, they all act by inhibiting the enzyme DNA polymerase. So depending upon that, there are different types: herpes 1, 2, 3, and 4. So moving further, anti-influenza drugs, they are oseltamivir and ranitidine. Ranitidine, and they act means they inhibit the matrix proteins, whereas the oseltamivir and zanamivir, they inhibit the neuroaminidase enzyme. So basically जो भी ड्रग होगी उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कोई ना कोई एंजाइम के ऊपर एक्ट करेगी. जो एंजाइम का मेन रोल है उसके मैकेनिज्म में, उसके एंटीवायरल, वी कैन से वायरल पैथोजेनेसिस में जो भी रोल है, उस रोल को वो एंजाइम जो रोल प्ले करता है, उस एंजाइम को इनहिबिट करने के लिए वो ड्रग देंगे. अगर वो एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा तो देयर विल बी नो रोल ऑफ दैट वायरस. वायरस अपनी पैथोजेनेसिस नहीं कर पाएगा, देन द पेशेंट गेट रिलीव्ड. So you just have to remember the names of the drugs and the mode of action. Then moving to hepatitis drugs, the anti-hepatitis drugs, these include basically interferon alpha has a major role, whereas depending upon which infection, like in hepatitis C, the infection is from we can give semipavir, sofosbuvir, and these are lepidosvir and ribavirin. इम्यूनोप्रोफिलेक्सिस का मतलब ये है कि जैसे किसी को अगर बीमारी हुई है तो उसको प्रिवेंशन कैसे करनी है होने से पहले. दिस इज बेसिकली डन बाय वैक्सीनेशन. आप सबकी भी वैक्सीनेशन हुई होगी. सो लाइकवाइज देयर इज अ वैक्सीनेशन फॉर दैट वायरल डिजीजेस. सो वायरल वैक्सीन, सिंस द वायरल एंटीजेंस आर द मोस्ट पोटेंट इम्यूनोजेंस, वायरल वैक्सीन कॉन्फर प्रोलॉन्ग्ड एंड इफेक्टिव इम्यूनिटी, whereas the vaccine for the viral infection may be available either live, killed or subunit forms. Like in your example, in your exam you are going to write a short note on the live vaccines or the killed vaccines or subunit vaccines. So you have to write the means what is the definition of that particular vaccine and give an examples of that. Fine. फर्स्ट इज द किल्ड वैक्सीन. किल्ड वैक्सीन, किल्ड आपको नाम ही बता रहा है, किल्ड मतलब कि वायरस को हमने मार दिया. जो भी अपन वैक्सीन दे रहे हैं वो वायरस को मारेगा बेसिकली. सो इट एक्ट्स बाय इनएक्टिवेटिंग द वायरस. वायरस को इनएक्टिवेट कैसे करेंगे? हीट, फिनोल, क्योंकि कुछ जो आपने स्टरलाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ा होगा, वहां पे आपने पढ़ा होगा किसी को एसिड इनहिबिट करती है, किसी को हीट करती है, किसी को फिनोल करती है. लाइकवाइज फॉर दैट वायरल डिजीजेस, हीट, फिनोल, फॉर्मलिन एंड बीटा प्रोपेनोलैक्टोन, दे इनहिबिट द वायरसेस. सो यूवी रेडिएशन इज नॉट recommended because by the action of the UV rays there occurs the multiplication of the virus, so it is not being effective. Advantages, these are more stable and more safely used. Disadvantage is that they are associated with the more adverse effects. Fine. Then is subunit. सबयूनिट एज द नेम सेज कि पूरा वायरस है, वायरस का कोई पर्टिकुलर एंटीजन है जिसके कारण वो इन्फेक्शन कॉज करता है, तो इस एंटीजन का कोई यूनिट होगा जिसके अगेंस्ट अपन वैक्सीन बना लेंगे. फाइन. सो ओनली पर्टिकुलर एंटीजन ऑफ द वायरस इज इनकॉर्पोरेटेड इन द सबयूनिट वैक्सीन. कैसे बनाते हैं इसको? बाय यूजिंग अ डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी. फाइन. द जीन कोडिंग फॉर द डिजायर्ड एंटीजन इज इंटीग्रेटेड इनटू बैक्टीरिया और यीस्ट सेल्स एंड द रेप्लिकेशन occurs. Fine. Other is the live vaccine. Live vaccine is the most of the live vaccines are prepared by attenuation by series of passes. मतलब वायरस को subsequent stages पे मल्टीप्लाई करके उनको मतलब हम कहते हैं कि कितनी डोज दें कि उसके बाद उसका इफेक्ट होना कम हो जाए. So likewise the live vaccines are given for they are more stronger and long lasting, and example is they are usually given as a single dose only. Fine. Disadvantages are they are risky in the immunodeficient patient as well as in the pregnant females. नेक्स्ट इज इम्यूनोग्लोबुलिन्स. इम्यूनोग्लोबुलिन्स का मतलब क्या? रेडीमेड हमने अंदर दे दिया, सीधा किसी को इन्फेक्शन हुई है साथ के साथ दे दिया, तो इससे एंटीबॉडीज बनी होंगी जो सीधा एक्ट करेंगी. जबकि अगर वैक्सीन देते हैं तो बॉडी में वो जाएगी, वो एंटीबॉडीज बनाएगी, फिर इम्यूनिटी आएगी. इसमें रेडीमेड अपन एंटीबॉडीज दे देते हैं और डायरेक्टली वो इन्फेक्शन को इनहिबिट कर देते हैं. फाइन.
So passive immunization is indicated when the individual is immunodeficient or early protection is required. Likewise, जैसे किसी को भी अपना किसी को जैसे हेपेटाइटिस बी की भी होती है, तो अगर सिरिंज लग जाती है, नीडल लगती है, तो अपन उसको इम्यूनोग्लोबुलिन्स देते हैं ना। जैसे आप लैब हॉस्पिटल में काम करोगे, ब्लड सैंपल लेते हुए कोई पेशेंट है जो हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, उसकी प्रिक आपके लग जाए, देन वी गिव यू इम्यूनोप्रोफिलैक्सिस फॉर दैट, ठीक है। तो उसके लिए इम्यूनोग्लोबुलिन्स देते हैं। सो दीज आर द लाइक दैट वन। फाइन, ह्यूमन immunoglobulins are available for many viral diseases. Examples are mumps, measles, hepatitis B, rabies and varicella zoster virus. Now next is the combined vaccination, मतलब prophylaxis भी देना है और ट्रीटमेंट भी देना है। मतलब इन्फेक्शन होने से पहले और अगर इन्फेक्शन हो गई है तो उसके साथ में कैसे दे सकते हैं। जैसे हेपेटाइटिस बी है, अगर बच्चे की मम्मा को हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है तो उसको बर्थ पे अपन एक तो वैक्सीनेशन देंगे जो अपना नॉर्मल शेड्यूल है, और साथ में इम्यूनोग्लोबुलिन्स देते हैं बच्चे को। फाइन, सेम इज द केस फॉर द रेबीज। Now further moving is the overview of other viral infections. So in this lecture we are just getting to know which virus is this and the major disease they are going to call. Further details will be processed in further lectures. Fine. So first is the herpes. Herpes is a broad group. It is a group of DNA viruses which have a unique property of establishing the latent or persistent infections. Depending upon latency, they are alpha, beta and gamma. Likewise, alpha कोई lymph nodes में latency कर रहा है, कोई tissues में कर रहा है, तो likewise they are defined further. Fine. So herpes simplex virus, it is 1 and 2. The pathogenesis is by if there is any abraded skin or mucosa, from that the virus enter inside the body and if further get multiplied. So the route of infection is basically oropharyngeal contact for the herpes simplex 1, whereas 2 it is by sexual route. Fine. It invades the local nerve endings and then reach the dorsal root ganglia where they undergo latency. Latency का क्या मतलब है कि वो बॉडी में चला गया, लेटेंट फेज में चला गया, मतलब कि अभी जाके वो इन्फेक्शन नहीं कॉज कर रहा बट वो बॉडी में है। जब भी इम्यूनिटी डाउन होगी देन द वायरस फ्लोरिश एंड कॉज अ डिजीज। फाइन। So herpes simplex 1 virus, it is basically latent in the trigeminal ganglia, whereas herpes simplex 2 in the sacral ganglia. Whereas further it is extremely widespread and cause infection in skin, mucosa or organs like orofacial. Orofacial का मतलब अपना आ गया ओरल टिश्यू माउथ में, और वहाँ पे क्या होगा, वेसिकल्स बन जाएंगे। CNS में चला गया, एंसेफ्लाइटिस हो जाएगा। स्किन पे क्यूटेनियस इन्फेक्शंस वगैरह हो जाएंगी। आई में कॉर्निया को इन्वेड करेगा तो कॉर्नियल अल्सर्स हो जाएंगे। So whereas neonatal herpes, it is the infection which is caused during the time of the birth from the mother to the fetus. Further, how we are going to demonstrate the herpes simplex virus? It is demonstrated by a Ziemza staining. आप ये पैथो में पढ़ते हो बेसिकली, Ziemza स्टेन आप वहाँ है, तो Ziemza स्टेनिंग जब भी हम करते हैं, we are going to see Zank smear बनाते हैं, तो उसमें हमें लार्ज सेल्स दिखते हैं। फाइन। उसके बाद वायरल आइसोलेशन इज ऑल्सो डन इन वेरियस सेल लाइन्स, क्योंकि वायरस को जब भी आइसोलेट करते हैं तो जैसे मैम ने पहले आपको पढ़ाया होगा लैब डायग्नोसिस में, तो डिफरेंट पार्ट्स है। तो कई बार हम क्या करते हैं कि सेल लाइन्स, ह्यूमन सेल लाइन, एनिमल सेल लाइन्स में, एनिमल्स में या ह्यूमंस में हम वो वायरस डाल देते हैं, देन इट प्रोड्यूस फर्दर इफेक्ट्स। सो दीज इफेक्ट्स आर कॉल्ड साइटोपैथिक इफेक्ट्स बेसिकली। सो बाय गेटिंग टू विच साइटोपैथ, किसी की बैलूनिंग हो रही है, किसी में स्क्रीनेशन हो रही है सेल्स की, तो डिपेंडिंग अपॉन द साइटोपैथिक इफेक्ट वी आर केम टू नो विच वायरल infection is the patient is having. So other methods are detection by viral antigen, that is by direct immunofluorescence assay, ELISA or PCR. So treatment of choice is acyclovir, which acts by inhibiting the DNA polymerase enzyme, as I already told you. Then moving to varicella zoster virus, इसका नाम आप सबने सुना ही होगा, चिकन पॉक्स। बचपन में मोस्ट ऑफ you guys have experienced the chicken pox. तो सेकेंड इज जोस्टर और शिंगल्स। जब अगर किसी की पेशेंट की इम्यूनिटी डाउन होती है, ऑलरेडी चिकन पॉक्स की इन्फेक्शन हुई है, वायरस लेटेंट हुआ होता है बॉडी में, जब भी इम्यूनिटी डाउन होगी इट में लीड टू जो herpes zoster और शिंगल्स। नेक्स्ट वायरस इज साइटोमेगेलो वायरस। एज द नेम सेज, इट साइटोप्लाज्म को इन्फेक्ट करके, इसका मतलब इट इज बेसिकली मतलब इट इज अ लार्ज वायरस, सो इस अपने लार्ज सेल्स को इन्फेक्ट करता है। इट कॉजेज अ रे ऑफ क्लिनिकल सिंड्रोम्स लाइक कंजेनिटल पेरिनेटल इन्फेक्शंस, सो इट मे ऑल्सो कॉजेज मोनोन्यूक्लियोसिस लाइक सिंड्रोम। फाइन। डायग्नोसिस कैसे करते हैं? इसके लिए अपन जब भी स्टेनिंग करते हैं तो हमको क्या दिखते हैं, इंक्लूजन बॉडीज दिखते हैं। इंक्लूजन बॉडीज बेसिकली व्हाट आर दे? वायरस का जो हम कहते हैं कोई पार्ट है, या वायरस का वीरियन है, तो वो जो इन्फेक्टिव पार्ट होता है हम उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। दीज आर बेसिकली इंक्लूजन बॉडीज। और जो CMV में होते हैं वो आउलाई अपीयरेंस होती है।
Virus can be isolated in the human fibroblast cell lines, and antibody can be detected by ELISA, whereas antigen, that is PP65 antigen, is specific for cytomegalovirus. Fine. And then PCR. PCR तो आजकल आप सबने सुन ही रखा है कोविड के कारण, तो कीप फैमिलियर विद दैट. एग्जाम में PCR पे नोट आता है बहुत फ्रीक्वेंटली आपके पेपर में. फाइन. वो आपको एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन वाले चैप्टर में करवाएंगे. ट्रीटमेंट में क्या है, ये एसाइक्लोविर से ट्रीट नहीं होता है. सो वी आर गोइंग टू गिव ganciclovir, valganciclovir, foscarnet and cidofovir. Then moving to Epstein-Barr virus. Epstein-Barr virus, it occurs by the salivary secretions. So whenever the saliva get in contact of the infected person, the patient may have an infection. So they infect basically B lymphocytes, and infected B lymphocytes will produce large amount of the immunoglobulins. In response to this CD8 cells, they are also stimulated and atypical response is produced. So Epstein-Barr virus leads to infectious mononucleosis and other Burkitt lymphoma, nasopharyngeal lymphoma, Hodgkin and non-Hodgkin lymphomas. How they are detected? They are detected by known as a Paul-Bunner test, and anti-Epstein-Barr virus antibodies can be detected inside the body by using either ELISA or any other method. Other less common herpes are herpes 6 and 7. They infect the T cells, whereas herpes 6 it leads to a sixth disease. हम इसको बोलते हैं रोजियोला इन्फेंटम. बच्चों में फेसेस पे पैचेस एरिथमा वगैरह हो जाता है whenever you see a child. Herpes simplex 8 it leads to infects B lymphocytes and leads to Kaposi sarcoma. Now other DNA viruses, parvoviruses. Parvoviruses, it is the smallest animal virus and it leads to fifth disease. The rashes may appear on the face. तो ऐसे लगता है किसी ने चांटा मारा हो, तो यहाँ faces red होते हैं. Fine. That's why they are called slap cheek appearance. And they infect the RBC precursors to cause non-immune hydrophytalis and aplastic anemia in the children. Next is papilloma viruses. Papilloma virus, they basically lead to benign lesions. वार्ट्स वगैरह होंगे बॉडी में, या malignant carcinomas. And the most common जो malignant potential होता है वो होता है papilloma virus 16 and 18 variant जो उसका होता है. It is mainly malignant. Next is polyoma viruses. Polyoma viruses, it includes JC virus and BK virus, and they are named after the patients who described by effect. It has an oncogenic potential. Fine, means carcinogenic है वो भी. Next is adenoviruses. They are also DNA viruses and they infect and replicate in epithelial cells and lead to various infection. Epithelial cells कहाँ होंगे? Respiratory tissue में होंगे तो respiratory infection हो जाएगी. अगर intestine में गए तो बच्चों को infantile diarrhea हो जाता है. Eyes में गया conjunctivitis हो गया. Urinary bladder involve हो गया तो cystitis हो जाएगा. Pox viruses, they are largest DNA viruses. If anybody asks you, then they are largest DNA viruses having a double-stranded DNA and they replicate in the cytoplasm. DNA viruses usually nucleus में multiply करते हैं, but pox viruses बहुत बड़े होते हैं, so they multiply in the cytoplasm, not in the nucleus. फर्दर स्मॉल पॉक्स वायरस, इसका नाम आपने सुना ही होगा. एक ही डिजीज है जो अपनी इरेडिकेट कंप्लीटली हो चुकी है, दैट इज स्मॉल पॉक्स वायरस. इट इज हाईली कंटेजियस डिजीज एंड दिस इज द फर्स्ट इन्फेक्शियस डिजीज टू बी इरेडिकेटेड. सो रैशेस होते हैं. इस स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स में डिफरेंस होता है. इसमें डीप सीटेड होंगे, एक स्टेज होएगी, सेंट्रीफ्यूगल स्प्रेड होता है, जबकि चिकन पॉक्स में इससे वाइस वर्सा होता है. सुपरफिशियल लीजन्स होते हैं, सारी स्टेजेस मिलेंगी, कहीं पेप्यूल होगा, कहीं वेसिकल होगा, कहीं प्लाक बना होगा बॉडी पे, सब जगह पे. एंड वो सेंट्रीफ्यूगल मतलब बॉडी, मतलब आप लोग ट्रंक से बाहर स्प्रेड होगा, जबकि जो दूसरा है अपना चिकन पॉक्स है वो वाइस वर्सा स्प्रेड करेगा. सो इट हाउ मतलब इरेडिकेट कैसे हुई? क्योंकि हमने इसके लिए वैक्सीनेशन डेवलप हो गई थी वैक्सीनिया वायरस से. दैट्स व्हाई इट इज इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड. So next is molluscum contagiosum virus. It is also another virus and leads to pink pearly wart like lesions. मतलब बड़े बड़े lesions होंगे, सेंटर में डिप होगा. अम्प्लिकेटेड का ये मतलब होता है ना, बड़े बड़े ऐसे फ्लावर टाइप बड़े से lesions होंगे और सेंटर में इनके डिप होएगा. मतलब डिप मतलब खाली जगह, आपको ऐसे लगेगा जैसे थोड़ा सा कुआं सा है, वैसे बोलते हैं हम. अम्प्लिकेटेड विद अ डिम्पल एट द सेंटर. फाइन. नेक्स्ट इज बैक्टीरियोफाजिस. बैक्टीरियोफाजिस पे भी नोट आता है आपको एग्जाम में. सो बेसिकली व्हाट आर दे? बैक्टीरियोफाजिस आर द वायरसेस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया एंड वाज डिस्क्राइब्ड बाय टॉट एंड हैरेल. सो इनकी स्ट्रक्चर कैसा होता है? टैडपॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, हेक्सागोनल हेड होता है, टेल फाइबर्स होते हैं एंड सेंटर में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है इनके. फाइन. हाउ दे इनके दो साइकिल्स है मल्टीप्लिकेशन के, एक लाइसोजेनिक होता है और एक लिटिक साइकिल होता है. फाइन.
सो जो फाज वायरसेस है पहले बॉडी के अंदर जाएंगे, पहले अटैच करेंगे, देन उनका डीएनए मटेरियल अंदर जाएगा, देन अगर वो डीएनए मटेरियल बैक्टीरिया के मटेरियल के साथ इनकॉर्पोरेट हो गया तो लाइसोजेनिक साइकिल हो गया। अगर वो अंदर जाके मल्टीप्लाई करके अपनी ही मल्टीपल कॉपीज बना के देन असेंबल करके बाहर निकल जाएगा, देन इट इज लाइटिक साइकिल। फाइन। What is the significance of the bacteriophages? Means bacteriophages are nowadays they are used for the phage typing, phage therapy, cloning vector, drug transfer resistance factors, code for the toxins। बहुत सारी toxins bacteriophages के through produce करते हैं। Another is the myxoviruses. Myxoviruses, it is a group of the viruses which bind to the mucin receptors on the surface of RBCs। इसमें दो आते हैं, ऑर्थो एंड पैरामिक्सोवायरसेस। ऑर्थो वायरसेस जो इन्फ्लुएंजा वायरस की फैमिली आ गई, एंड पैरामिक्सो में आपकी पैरा इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, मम्प, निपा वायरसेस वगैरह आ गए। सो इन्फ्लुएंजा वायरस का आपने सुना ही है कि अगर इन्फेक्शन होएगी दे कॉजेज लॉट ऑफ मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी। सो इट बहुत सारे पेंडेमिक्स वगैरह इससे हुए हैं। H1N1 का जो रीसेंट पेंडेमिक 2009 में हुआ था। फाइन। अब वायरुलेंस की होती है इन्फ्लुएंजा वायरस की, इसके पास दो एंटीजन है, एक होता है हीमोग्लूटिनिन। हीमोग्लूटिनिन मतलब आरबीसीज के साथ बाइंड करेगा, दूसरा न्यूरोएमिनिडेज एंजाइम होता है, एंटीजन होता है, वो उसको बाइंड करने से रोकता है। सो ऑपोजिट वर्क करते हैं। सो इन्फ्लुएंजा ए टू डी 4 टाइप्स के होते हैं और ए इज फर्दर डिवाइडेड इनटू वेरियस सब टाइप्स। सॉरी। सो एंटीजेनिक वेरिएशन होती है इसमें। जो एंटीजन है बेसिकली इन्फ्लुएंजा के पेंडेमिक्स वगैरह क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें दो तरह की शिफ्ट्स होती है, एक एंटीजेनिक ड्रिफ्ट होती है, एक एंटीजेनिक शिफ्ट होती है। दे आर बेसिकली वेरिएशंस। एंटीजेनिक ड्रिफ्ट का मतलब थोड़ा सा जेनेटिक चेंज आएगा, वो धीरे धीरे कैरी हो जाएगा, और एंटीजेनिक शिफ्ट का मतलब है कि बहुत बड़ा जेनेटिक चेंज आता है, तो इसके कारण वो फास्ट स्प्रेड हो जाता है आगे। फाइन। सो इट अकाउंट्स टू occurrence of various pandemics and frequent epidemics and outbreaks in the country। सीजनल फ्लू जैसे आपने सुना ही है, खांसी जुकाम जो नॉर्मली होता है, वैसे ये इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण भी सीजनल फ्लू होता है, इन्फ्लुएंजा ए, H1N1, H3N2 वगैरह के साथ। तो इसमें सिम्टम्स क्या होंगे, वही जो नॉर्मल फ्लू वाले होते हैं। फ्लू में क्या होता है, कफ, कोल्ड होता है, फीवर होता है, माइल्जिया होता है पेशेंट को। दीज आर द सिमिलर सिम्टम्स कॉज्ड बाय दीज वायरसेस। हाउ वी आर गोइंग टू डिटेक्ट, डिटेक्शन इज डन बाय डिटेक्शन ऑफ द वायरल RNA। सैंपल कहाँ से लेते हैं, जब भी जो मेनली जो रेस्पिरेटरी रूट को इन्फेक्ट करते हैं उनका सैंपल अपन नेजोफेरेंजियल स्वैब लेते हैं बेसिकली। फाइन। सो ट्रीटमेंट पार्ट क्या है, देखो इसमें दो एंटीजन आपने पढ़े, न्यूरोएमिनिडेज पढ़ा था इसमें, और दूसरा हीमोग्लूटिनिन पढ़ा था। न्यूरोएमिनिडेज एंटीजन है तो उसके अगेंस्ट इनहिबिटर्स यूज हुआ, तो ओसेल्टामाविर उसकी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। और दूसरा कौन है जो अपने मैट्रिक्स प्रोटीन को इनहिबिट करता है, एमेंटाडिनिन। फाइन। सो इसके ट्रीटमेंट के लिए वैक्सीन भी अवेलेबल है, लाइव एज वेल एज इंजेक्टेबल। Moving further, these are para-influenza viruses. They basically infect the young children and such common cold, croup or pneumonia or bronchitis patients may have. Mumps का भी आपने नाम सुना होगा, ये बच्चों में होता है। मम्प्स में पी आता है तो ऐसे याद रख लेना कि पी है तो पैरोटिड ग्लैंड एनलार्जमेंट होती है बच्चों में। फाइन। जो बहुत ज्यादा सीवियर केसेस होते हैं, द पेशेंट में हैव एक्सपीरियंस ऑर्काइटिस एंड एसेप्टिक मेनिंजाइटिस, और रूट ऑफ इन्फेक्शन इज बाय रेस्पिरेटरी रूट। फर्दर इज मीजल्स। मीजल्स इज ऑल्सो हाईली कंटेजियस डिजीज, ये भी बच्चों में मिलती है। इसमें मेन क्या होता है, कॉप्लिक स्पॉट्स। ओए फर्स्ट लाइन दिख रहा है मेरे को? फाइन। बच्चों में क्या होता है, कॉप्लिक स्पॉट्स होते हैं बक्कल म्यूकोजा के अंदर, सेकंड मोलर के पास में, एंड चिल्ड्रन में एक्सपीरियंस है मैकुलोपेपुलर रैश। एंड अगर ये ठीक नहीं होगा या मीजल्स होने के बाद कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। इट इंक्लूड्स SSPE, दैट इज सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पैनएन्सेफलाइटिस, ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है पेशेंट में, सो एन्सेफलाइटिस हो जाता है। सो प्रिवेंशन कैसे करते हैं, बच्चों को 9 मंथ्स पे अपन मीजल्स की वैक्सीन देते हैं। Another is Nipah and Hendra viruses. These are basically emerging viral infections. So जो भी मोस्टली जो ये निपा, हेंड्रा, ये सब है तो ब्रेन को इन्फेक्ट करते हैं। सो ब्रेन को करेंगे तो बेसिकली एन्सेफलाइटिस या मेनिंजाइटिस ही होएगा। सो निपा एंड हेंड्रा वायरस दे लीड्स टू एन्सेफलाइटिस एंड इन्फेक्शन अकर्स बाय बैट एंड पिग्स एंड पर्सन्स। निपा का आउटब्रेक जो रिसेंट 2018 में हुआ था केरला में। फाइन। रेस्पिरेटरी सिंसिटिव वायरस जो है ये बच्चों में ब्रोंकोलाइटिस कॉज करते हैं, मोस्ट कॉमन कॉज। Then is रूबेला वायरस। रूबेला वायरस इट लीड्स टू चाइल्डहुड एक्जेंथेमा। एक्जेंथेमा का क्या मतलब हुआ, रेड कलर के पैचेस बन जाते हैं बॉडी पे बच्चों के। फाइन। सो इट इज ऑल्सो टेरिटोजेनिक एंड कंजेनिटल मॉलफॉर्मेशंस हो जाती हैं आई, ईयर एंड हार्ट, इसलिए इसको बोलते हैं कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम। फाइन। आई, ईयर एंड हार्ट। फाइन। इसमें कैटरैक्ट हो जाता है आई में,
ईयर में सेंसरी न्यूरल डेफनेस हो जाती है, हार्ट में बच्चों को अपना बोलते हैं CHF वगैरह हो जाता है, फाइन। उसके बाद लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन आर अवेलेबल फॉर रूबेला चिल्ड्रन एंड ऑल्सो रिकमेंडेड फॉर यंग वुमेन। पिकोरना वायरसेस बहुत बड़ा ग्रुप है, इसमें वो आएंगे वायरस जो टमी को अफेक्ट करते हैं, बेसिकली एंटेरो वायरसेस एज वेल एज जो रेस्पिरेटरी रूट को इन्फेक्ट करते हैं, दीज आर राइनो वायरसेस। सो एंटेरो वायरसेस जो पेट को इन्फेक्ट करते हैं तो रूट क्या होगा, फीको ओरल रूट होएगा उनका इन्फेक्शन का, फॉर एग्जाम्पल पोलियो, कॉक्सैकी वायरस। एंड राइनो वायरस है तो ये नोज होगा तो रेस्पिरेटरी रूट होएगा, तो मोस्ट कॉमन सिम्पटम इज कॉमन कोल्ड, फाइन। पोलियो वायरस इज मोस्ट कॉमन कॉजेटिव एजेंट है, इसमें फीको ओरल रूट से स्प्रेड होके अल्टीमेटली CNS इफेक्ट हो जाता है ब्लड के थ्रू जाके, फाइन। तो अगर CNS इन्वॉल्व हो गया तो मेनिंजाइटिस वगैरह, पैरालिटिक पोलियो हो जाता है। एक बार जिसको पोलियो हो गया द चाइल्ड में नॉट बी एबल टू वॉक प्रॉपर्ली, दैट्स वाई तभी कहते हैं कि पोलियो की वैक्सीन जरूर लेनी है। और जो अपना कैंपेन वो अपना अमिताभ बच्चन साहब करते हैं, तो वो भी जब ओरल OPV मिलती है तब वो भी लेनी है, और बच्चों के वैक्सीनेशन जरूर करवानी है, बिकॉज अगर पोलियो हो गया द child is not able to walk in his whole life and going to dependent upon somebody else. So इसकी वैक्सीनेशन है, किल्ड वैक्सीन है और लाइव ओरल है, दैट इज हम बोलते हैं इसको OPV या IPV जो इंजेक्टेबल वैक्सीन है, एंड OPV। पहले OPV रिजीम में था अपना जो इंडियन IAP का रिजीम था बच्चों का, अब चेंज होके IPV शिफ्ट हो गया उसमें, फाइन। तो बच्चों का इंजेक्टेबल वैक्सीन ही लगती है आजकल। इरेडिकेशन पोलियो इज नाउ एट द वर्ज ऑफ इरेडिकेशन, एंड ये क्यों हो रहा है, क्योंकि अपना इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम बहुत अच्छे से कंडक्ट हो रहे हैं इंडिया में, फाइन। उसके बाद आया नेक्स्ट कॉक्सैकी वायरस इट लीड्स टू नंबर ऑफ डिजीजेस, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस, हैंड फुट एंड माउथ डिजीज, कंजक्टिवाइटिस, मायोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस, पैनक्रेटाइटिस। नेक्स्ट इज आर्बो वायरसेस, फाइन। आर्बो मतलब आर्थ्रोपोड बोन, मतलब वो टिक्स माइट्स पड़ते हैं ना, तो वो जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं, हेल्प करते हैं, दे एक्ट एज अ पैथोजन एज वेल एज कैरियर फॉर दीज पर्टिकुलर वायरसेस, तो उसके लिए हम यूज करते हैं आर्बो वायरसेस। आर्बो वायरसेस में कौन से आ गया, डेंगू है, डेंगू में मच्छर काटता है, चिकुनगुनिया है उसमें भी मच्छर आता है, KFD है, जैपनीज बी इंसेफेलाइटिस है, इन सब में ही मॉस्किटो है। मॉस्किटो कौन सा है वो डिपेंड करता है, क्यूलेक्स है कौन सा है, डिपेंडिंग अपॉन दैट। नेक्स्ट इज रेबीज वायरस, आप सबने सुना ही होगा कि डॉगी हलक जाता है तो वो काट देता है, तो उसके थ्रू इन्फेक्शन हो जाती है, एंड इट इज वेरी डेडली इन्फेक्शन। सो बेसिकली इट इज रैपिडली स्प्रेडिंग एंड एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज जो CNS को इन्फेक्ट करती है। ट्रांसमिशन क्या है, डॉग बाइट, एंड फ्रॉम द साइट ऑफ बाइट, जहां से भी बाइट करेगा वहां से ब्रेन के पास जाएगा, एंड देन लीड टू एंसेफेलाइटिस। एक याद रखना, रेबीज का भी आपको प्रोफिलैक्सिस पे क्वेश्चन आता है 5-7 नंबर का पेपर में, फाइन। उसमें आपके बुक में टेबल बना हुआ है, पूरा ब्रीफ में लिखा हुआ है, हमारे टाइम मुझे आया था, तो इट इज वेरी फ्रीक्वेंट क्वेश्चन टू बी आस्क्ड इन एग्जाम, तो जरूर करके जाना, ये छोड़ के मत जाना रेबीज का, फाइन। लैब डायग्नोसिस इट इज बाय हाउ, कैसे करते हैं अपन, हेयर फॉलिकल्स लेते हैं नेप ऑफ नेक से, एंटीबॉडी डिटेक्ट कर लो, RT-PCR कर लो, या जो डॉगी मर गया या जो भी जिसकी डेथ होगी उसके अपन ब्रेन टिश्यू लेके उसमें नेग्री बॉडीज देखते हैं। अभी इंक्लूजन बॉडीज बताया था ना आपको लैब डायग्नोसिस में, डॉक्टर साहब ने भी बताया होगा, तो दे आर बेसिकली क्या है, वो वीरियन पार्टिकल्स ही हैं। तो इंक्लूजन बॉडीज अगर हैं, वो निग्री बॉडीज हैं, तो इट इज रेबीज इन्फेक्शन, फाइन। सो मैनेजमेंट क्या है, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस, उसमें वूंड केयर भी करते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी देते हैं, एंड वैक्सीनेशन भी है। नेक्स्ट इज HIV का नाम तो सबने सुन ही रखा है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। सो इट इज बेसिकली सेक्सुअल रूट, वर्टिकल रूट, मदर टू फीटस, बेसिकली पैरेंटल एंड परक्यूटेनियस नीडल पिक इंजरी से होता है। तो HIV मतलब हम बोलते हैं ना, हर कोई का अपना सेल फेवरेट होता है, तो HIV के लिए CD4 सेल्स है, तो इसने अगर खाना है तो ये CD4 सेल्स को खत्म करेगा, और CD4 सेल्स अगर बॉडी में कम होंगे तो पेशेंट की बॉडी में इम्यूनिटी डाउन होएगी, और इम्यूनिटी डाउन होएगी तो सुपर एडेड इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, फाइन। टिपिकली कोर्स जो इसका है, हम एंटी रेट्रोवायरल सिंड्रोम है, इसमें पहले एसिम्प्टोमेटिक स्टेज होती है, फिर उसके बाद वो परसिस्टेंट लिम्फेडिनोपैथीज हो जाती है, देन सिम्प्टोमेटिक HIV हो जाता है, और लास्ट पे फुल ब्लॉन एड्स हो जाता है पेशेंट को। लैब डायग्नोसिस में क्या है, अपना रैपिड टेस्ट ELISA, वेस्टर्न ब्लॉट, P24 एंटीजन कर लो, RT-PCR। हाँ, HIV का भी लैब डायग्नोसिस आपको एग्जाम में आता है, मैं बीच बीच में बताती रहूंगी जो आपको क्वेश्चंस आते हैं, कि एटलीस्ट यू शुड लर्न दैट क्वेश्चंस, वो मत मिस करना। सो लैब डायग्नोसिस ऑफ HIV पे भी आपको क्वेश्चन आता है, फाइन। ये डिटेल्स में आएंगे सब, डोंट वरी, ये सारे वायरसेस आगे सिलेबस में कवर होंगे, इट इज जस्ट ओवरव्यू क्लास, फाइन। सो बेसिकली नेक्स्ट इज वायरल RNA इज डिटेक्टेड बाय RT-PCR, एंड इंडिया में अपन NACO है जो गाइडलाइंस देती है, जो फॉलो करते हैं हम सब लोग,
फाइन। ट्रीटमेंट क्या है? ART, दैट इज एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी देते हैं। और अगर TLE रिजीम बोलते हैं, बेसिकली टेनोफोविर लेमिविडिन एफाविरेंस का कॉम्बिनेशन देते हैं। जिसका अगर किसी को HIV हो जाता है या किसी को कोई पेशेंट है, जैसे आप पेशेंट का सैंपल ले रहे हो, पेशेंट ऑलरेडी रिएक्टिव है, उसकी नीडल प्रिक आपको होगी, तो खुद मतलब इसमें भी इम्यूनोप्रोफिलैक्सिस लेते हैं तो TLE ही देते हैं। उसमें एक टैबलेट देते हैं, वो खानी पड़ती है 1 महीने के लिए, एंड इट इज वेरी नॉजियाटिक, और चक्कर चुक्कर सब आते हैं पेशेंट को अगर ये खानी पड़ जाए। फाइन। तो जब भी ब्लड सैंपल वगैरह लो, ऑलवेज वियर मास्क। जब भी आपकी ड्यूटी लगती है हॉस्पिटल में, ब्लड सैंपल सीखना तो MBBS नहीं है, तो ध्यान से कलेक्ट करना है, अच्छे से कलेक्ट करना है, कलेक्शन सही होनी चाहिए, और ऑलवेज वियर ग्लव्स, चाहे वो पॉजिटिव पेशेंट है या नहीं है, फॉर योर ओन सेफ्टी। फाइन। नेक्स्ट इज कोरोना। ये तो आजकल आप सबने सुन ही रखा है नाम। तो कोरोना वायरस जो पुराने थे वो पहले सार्स था एंड मर्स था। सार्स मतलब सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, एंड मर्स इज मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, जो ह्यूमन टू मैन ट्रांसमिट होता है, बहुत सारे सीवियर रेस्पिरेटरी डिजीजेस कॉज करता है, एंड हाई मोर्टेलिटी। अब ये कोविड-19 भाई सब चाइना से आए हैं, हमारे पास गिफ्ट दिया चाइना ने 2019 और 20 में, उसके बाद पूरे वर्ल्ड की वाट लग गई है, कुछ नहीं बचा अभी। इट इज वेरी मीन्स टिल नाउ वी आर एक्सपीरियंसिंग द वायरस। तभी बोलती हूँ कि मास्क जरूर डाल के आओ, क्योंकि इट इज फॉर योर ओन सेफ्टी एज वेल। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो उसकी सेफ्टी, और बड़ों की, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए कोई वैक्सीन अभी नहीं आई है 12 साल तक। 12 साल के बाद की अब वैक्सीनेशन स्टार्ट हुई है, तो अपने नहीं तो अपने छोटे भाई बहन के लिए मास्क जरूर डाल के रखो, एंड पेरेंट्स के लिए। आप सब लोग तो बच जाओगे, कोविड हुआ, मैंने भी करवाया, डोंट वरी, मुझे भी हुआ, ठीक है। तो अब होता है, हम लोग तो, मेरे तो हस्बैंड हैं तो उनके थ्रू हो गया था, तो तभी ध्यान रखो, जब भी मास्क डाल के रखो जहां भी जाते, क्योंकि मोस्ट अफेक्टेड कौन है? छोटे बच्चे और आपके एल्डरली दादा दादी। एंड अगर उनको हो जाए तो, अगर वैक्सीनेशन नहीं हुई है तो इट इज वेरी डेडली, वेरी डेडली। फाइन। सो टिल नाउ जून में 1 करोड़ केसेस तक हो चुके हैं वर्ल्ड वाइड, विद 5 लाख डेथ्स, एंड मोर देन 200 कंट्रीज आर अफेक्टेड, वॉज फॉर US, ब्राजील, रशिया एंड इंडिया। सो डायग्नोसिस हम RT-PCR से करते हैं। पेशेंट का सैंपल क्या लेना है? या तो थ्रोट स्वैब गले से लेते हैं या नेसोफेरेंजियल स्वैब लेते हैं, एंड नो ड्रग इज इफेक्टिव फॉर दैट। हम सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही देते हैं कोविड-19 का, अगर कोई पेशेंट पॉजिटिव होता है। सो ऑलवेज मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन, हैंड हाइजीन एंड यूज ऑफ मास्क। नाउ इज हेपेटाइटिस वायरस। हेपेटाइटिस वायरस का भी ब्रॉड ग्रुप है, सो कीप क्वाइट प्लीज। इट इज हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ द वायरसेस है, एंड 5 है A to E, वैसे आगे भी हैं, तो मेन 5 है A to E। इनमें से आपको किसी भी एक पे नोट आ सकता है, हेपेटाइटिस में भी B and C पे मोर कॉमन आता है। फाइन। सो ऑल आर RNA वायरसेस। जो हेपेटाइटिस B है वो DNA वायरस है, DNA वायरस है, एंड देयर फर्दर मतलब इनको सब ग्रुप में डिवाइड कैसे किया हुआ है कि रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। जैसे फीको ओरल रूट है तो हेपेटाइटिस A and E है, ब्लड के थ्रू है तो हेपेटाइटिस B and C है। फाइन। हेपेटाइटिस A and E ट्रांसमिटेड बाय फीको ओरल रूट, एकदम से होता है, सेल्फ लिमिटिंग है, ठीक हो जाता है पेशेंट, एंड इसमें कोई कैरियर स्टेज या कार्सिनोजेनिक नहीं है। जबकि हेपेटाइटिस B, C and D एंड दे आर परक्यूटेनियस, सेक्सुअल एंड वर्टिकल रूट्स होते हैं, एंड इंसिडस, ऑनसेट एंड वेरिएबल प्रोग्नोसिस है इसमें, एंड देयर इज ऑल्सो कैरियर स्टेज भी है, क्रॉनिसिटी भी है, कार्सिनोजेनिक भी है। लैब डायग्नोसिस कैसे करते हैं? अब कोई भी वायरस का लैब डायग्नोसिस है, एक बात याद रख लेना पेपर में, कि आप या तो एंटीजन देखोगे, या एंटीबॉडी देखोगे, या मॉलिक्यूलर करोगे, या सेल लाइंस करोगे, ये 4-5 मेथड है, या आइसोलेट करोगे वायरस को। जब भी पेपर में किसी का भी लैब डायग्नोसिस या कोई वायरस आता, अगर आपको कुछ नहीं भी आता, एटलीस्ट लैब डायग्नोसिस तो लिख दो, सैंपल कलेक्शन से उससे 2 नंबर तो मिल जाएंगे डेफिनेटली। फाइन। उसके बाद आता है न्यूक्लिक एसिड डिटेक्शन बाय PCR। ट्रीटमेंट क्या है? हेपेटाइटिस A and E इट इज सेल्फ लिमिटिंग, तो कोई ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं है। हेपेटाइटिस B के लिए हम टेनोफोविर एंड टेल्बुविडिन देते हैं, जबकि हेपेटाइटिस C के लिए इंटरफेरॉन एंड राइबाविरिन देते हैं। वैक्सीनेशन हेपेटाइटिस A and B की अवेलेबल है। बाकी RNA वायरसेस जैसे रॉडेंट बॉर्न है, वो क्या है कि अपने रैट वगैरह से ट्रांसमिट होते हैं। तो हेंटा वायरस और एरीना वायरस 2 ग्रुप है। हेंटा है जो अपना हेमरेजिक फीवर एंड किडनी रीनल सिंड्रोम करता है, रीनल एंड पल्मोनरी, जबकि एरीना वायरसेस है वो हेमरेजिक फीवर कॉज करते हैं। अगला ग्रुप है फिलो, इबोला एंड मार्बर्ग वायरस भी आपने सुना होगा, दे आर वेरी डेडली वायरसेस एंड हेमरेजिक फीवर कॉज करते हैं, एंड बंदा वहीं खत्म। फाइन। फिर क्लोज कंटेक्ट विद द ब्लड एंड इन्फेक्टेड स्क्रीशन से होता है। नेक्स्ट इज स्लो वायरसेस। स्लो वायरसेस का क्या मतलब है? द वायरसेस दे मल्टीप्लाई स्लोली एंड दे लीड टू न्यूरोडिजेनेटिक डिसऑर्डर्स, मतलब अपना दिमाग गया। फाइन। सो इट हैज अ लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड, CNS इन्फेक्ट होएगा, एंड जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन इज ऑल्सो देयर। गाइस बस
नेक्स्ट इज एग्जाम्पल, इसमें क्या क्या कॉज करते हैं, सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पैनएन्सेफलाइटिस है, ल्यूकोएन्सेफलोपैथी है, एंड प्रायन डिजीज आप बहुत फ्रीक्वेंटली नाम सुना होगा, इट इज ऑल्सो स्लो वायरसेस। नेक्स्ट इज वायरल गैस्ट्रोएंटराइटिस। गैस्ट्रोएंटराइटिस मतलब जो वायरसेस पेट को इन्फेक्ट करते हैं, बच्चों के लिए रोटा वायरस, एडल्ट्स के लिए एंटेरोवायरसेस, दे आर द मोस्ट कॉमन ग्रुप, फाइन, दे आर मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रंस एंड सेवरल वायरसेस आर देयर, एडिनोकैल्सी एस्ट्रोवायरसेस। सो अगर आप इसको छोड़ो, फाइन। अब ये मेरे को बताओ, कुछ समझ में आया आप सबको? हाँ, मुझे पता सुना तो कुछ होगा नहीं, हम भी नहीं सुनते थे, हमारा भी सही नहीं हालता, बट ये है कि अगर आप थोड़ा थोड़ा करके कर लोगे तो लास्ट मोमेंट में जाके आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि माइक्रो इज काइंड ऑफ दिस कि आप 5-6 बार भी रिवाइज करोगे ना तब भी बंदा भूल जाता है। थोड़ी सी क्रैमिंग माइक्रो और फार्मा में बहुत है, फाइन। तो अगर आप स्टार्टिंग से ही माइक्रो और फार्मा अच्छे से कर लो तो आप एग्जाम के टाइम पे तंग नहीं होगी, वरना एग्जाम के टाइम पे सब सिर पकड़ के बैठे होगे और सीनियर्स की जान खा रहे होगे कि अल्ट्रा से भी अल्ट्रा इंपॉर्टेंट पेपर में क्वेश्चन लगा दो, बट कई बार गूगली क्वेश्चन आ जाते हैं तो वहाँ से सबकी लग जाएगी, फाइन। तो इसलिए स्टार्टिंग से ही करो, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई भी फैकल्टी क्लास लेती है वो जरूर बताते हैं, तो एटलीस्ट वो क्वेश्चन यूज करो। कुछ नहीं, घर जाके इस चैप्टर को पढ़ोगे 1 से 1.5 घंटा लगेगा, एक रीड ले लो, उसके बाद खेल लो, मैथ खेलो, जो मर्जी करो, किससे रोकना। बट अगर अभी नहीं करोगे तो लास्ट में सिलेबस बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर पैरासाइटों में याद नहीं रहेगा, डीएनए को आरएनए वायरस बना लोगे, बैक्टीरिया को वायरस बना दोगे, पैरासाइटों को कुछ और बना दोगे, फिर पूरा मगअप हो जाएगा, फिर कोई फायदा नहीं होगा, फाइन। अटेंडेंस सबकी हो गई ना, और किसी को कोई क्वेरी हो तो यू आर मोस्ट वेलकम इन द डिपार्टमेंट, फाइन, थैंक यू।